So students, starting with the next chapter of business study of class 11, chapter 4, that is business services. In the previous chapter we have learned about what are the nature and purposes of business, forms of business and types of public, private and global enterprises. In this we will learn what are the types of services and what these services help us in the business to retain our business. So business services, we will know what is business services. Business services are those economic activities which are offered to a businessman and public in general against some predetermined remuneration. The existence of business depend upon the existence of these subsidiary service, transport, communication, banking, insurance, warehousing and advertisement. Business services are those services, they are economic in nature and these are considered as economic activity. In this, businessman give some services to the customer or to their producers for the benefit of their product, and from that they will provide some services to them. These services are known as some of these services are transport, communication, banking, insurance, warehousing, advertisement, etc. These are known as business services. Now the various section under which services are categorized, they are banking and insurance, finance, insurance, communication, warehousing and miscellaneous services. So in banking and finance we will learn about what are the types of banks and how they help the business or organization in their finance, types of insurance, communication, warehousing and miscellaneous activities. So बेटा what is banking and finance? Banking and finance क्या होगा? ये अपन फाइनेंस, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, वेयरहाउसिंग, ये वेरियस फर्दर टॉपिक्स में डिटेल में पढ़ेंगे. अभी ये देखते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस में वेरियस कमर्शियल बैंक्स, इंडस्ट्रियल बैंक्स, एग्रीकल्चर बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, रूरल बैंक, फॉरेन एक्सचेंज बैंक्स एंड सेंट्रल बैंक्स आर कंसिडर्ड. इंश्योरेंस, वेरियस टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस आर taken for as a service for the organization. Communication facilities are provided, warehousing facilities and miscellaneous services. So now we will learn what are the need and importance of the service sector, why the transportation is needed. So for you have made the product, now you have to supply the product and deliver it to the consumer or the producer who will sell further. But for that you will need the types and the various types of transportation mode through which you will deliver your product. So the transportation is needed. Means of communication, how you will communicate the producer or the person you want to sell the product. So means is communication is also important. Banking, how you will rearrange the finance for your organization. Insurance, we know that business is a risk, and business, while doing business, many uneven या फिर odd accidental या फिर कोई भी ऐसी process हो जाती है due to which we get loss of damage. So insurance is necessary because in business risk is there, and if we have insurance then we will compensate through the insurance and cover up our loss. Then packaging, we are delivering someone our products, so packaging is also necessary because with the help of proper packaging we will supply our product safely and securely to the people. And warehousing, up due to demand and supply, we to maintain our constant demand and supply, we will have to store our product for the future. So we will make a warehouse, and this is importance of warehouse. And to sell our product in large level, or how the people know about our product, so we will know about the advertisement process. So advertisement is also necessary in this. This is the nature and importance of service sector. Next comes nature and types of financial services. What are the nature and types of financial? How are the financial services issued? So first is deposit of insurance. With the help of insurance, we will financially need we will need our business financially. With the help of bill discounting, what is bill discounting? This is a type of discount which is made in the bill for the future use, है ना. मतलब इन द सेंस वी विल से डेट कि फॉर एग्जांपल जैसे मैं बताऊं कि आपने क्या किया कि आपने एक
ऑर्गेनाइजेशन में कुछ अमाउंट लगाना चाहा, ठीक है, आपके पास एट अ टाइम वो मतलब क्या नहीं है, फाइनेंस नहीं है, तो आपने क्या किया, एक बिल डिस्काउंट लिया, उसमें क्या किया कि आपने फ्यूचर की डेट का कोई बिल लगा दिया जिसमें आपको क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया, और वो प्रोडक्ट आपको जो अभी ख़रीदना है आप उसको क्या कर सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। लीज़ फाइनेंसिंग ये होता है, लीज़ का मतलब होता है बेटा जो आप किसी अदर की प्रॉपर्टी को या फिर अदर्स की प्रॉपर्टी या फिर डॉक्यूमेंट्स की हेल्प से या फिर किसी अपनी प्रॉपर्टी में या फिर किसी अपने ओनरशिप या फिर पेपर्स के थ्रू आप किसी को फाइनेंशियली हेल्प करते हो अदर पर्सन को, दैट इज़ नोन एज लीज फाइनेंसिंग। विद द हेल्प ऑफ, यह बोल सकते हैं कि अदर की प्रॉपर्टी या फिर असेट्स को यूज़ करके और अपना प्रॉफिट को बोलेंगे हम लीज फाइनेंस। हायर परचेज इंस्टॉलमेंट क्रेडिट, आपको हायर परचेज भी मिल सकता है और इंस्टॉलमेंट के अकॉर्डिंग आपको क्रेडिट भी इशू हो सकता है, ये भी टाइप्स होता है। और अंडर राइटिंग, आप किसी से अंडर राइट या फिर आप क्या बोल सकते हैं कि हमने एक पैसे दे दिए इंसान को, फाइनेंशियली हेल्प कर दिया और फिर उससे एक अंडर राइटिंग ले ली कि हम इस डेट तक वो हमको क्या कर देगा, अपना प्रोडक्ट या फिर अपना पेमेंट क्लियर कर देगा। दिस इज़ नोन एज अंडर राइटिंग। नेक्स्ट टॉपिक कम्स हियर इज व्हाट डू यू मीन बाय बैंकिंग। बैंकिंग बेटा, बैंक सब जाते हैं, क्या होते हैं बैंक, वहाँ पे क्या प्रोसेस होती हैं, तो एक ऐसा प्लेस जहाँ पे अपने मनी का क्या होता है, एक्सेप्टिंग एंड lending of deposits and money. So banking service is an extremely important service of organization. It secures a lending position in modern era. Modern commercial and trading activities cannot be imagined without our banking service. अभी बेटा क्या होता है, हर एक चीज़ आजकल क्या होने लगी है, ऑनलाइन या फिर कमर्शियल वे में होने लगी है, बट विदाउट बैंकिंग इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन टू डू बैंकिंग एंड टू survive in the modern commercial area. So banking is very necessary and there are many more advantages of banks and banking process. Now what is definition of bank? An institution engaged in accepting for the purpose of lending or investment of deposit of money from public, repayable on demand otherwise, and withdrawal by check, draft order or otherwise. एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जहाँ पे आप क्या करते हो, मनी को एक्सेप्ट करते हो, मतलब लोगों के मनी को डिपॉजिट करते हो, उनके मनी को सेव करते हो और जिनको नीड है उनको क्या करते हो, मनी प्रोवाइड करते हो विद दी हेल्प, जिसके बदले में वो आप उनको क्रेडिट का मनी प्रोवाइड कर देते हो और जहाँ से आप अपने मनी को क्या कर सकते हो, मनी को ले सकते हो, मतलब डिपॉजिट कर सकते हो और सेव कर सकते हो, और जब भी चाहो आप तो आपको वो डिमांड के अकॉर्डिंग क्या हो जाए, रिपेबल हो जाए। उस इंस्टीट्यूशन को अपन क्या बोलते हैं, बैंक। टाइप्स ऑफ बैंकिंग देखते हैं, वेरियस टाइप्स के बैंक हैं, कमर्शियल बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक, एग्रीकल्चर बैंक, फॉरेन एक्सचेंज बैंक, सेंट्रल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, इंडिजीनियस बैंक, एग्जाम बैंक एंड नाबार्ड। कमर्शियल बैंक्स वो बैंक्स होंगे बेटा जहाँ पे आपका नॉर्मल लैंडिंग एंड एक्सेप्टिंग ऑफ बैंक चलेगा, दीज आर नोन एज कमर्शियल बैंक। टोटली यहाँ पे मनी का ट्रांजैक्शन होगा ऑनलाइन और कमर्शियल प्रोसेस में होगा, है ना। या फिर अपन बोल सकते हैं ये जो भी बैंक्स होते हैं, जितने भी आपके प्राइवेट बैंक्स होंगे उनको क्या बोलेंगे, कमर्शियल बैंक। फॉर एग्जांपल HDFC, ICICI, ठीक है, ये सब आपके होंगे कमर्शियल बैंक। नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल बैंक्स, वो बैंक्स होंगे जहाँ पे सिर्फ इंडस्ट्रीज से रिलेटेड प्रोसेस होगी, इंडस्ट्रीज से रिलेटेड पूरी बैंकिंग प्रोसेस होगी, सिर्फ इंडस्ट्रीज़ के लिए ही आपका लैंडिंग और एक्सेप्टिंग होगा, सेविंग होगा, उनको बोलेंगे इंडस्ट्रियल बैंक। अब एग्रीकल्चर बैंक्स कौन से बैंक्स होंगे, वो बैंक्स जहाँ पे क्या होगा, पूरा एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोसेस होगी। आप एग्रीकल्चर का ही बैंक होगा, मतलब एग्रीकल्चर के मतलब फार्मर्स लोगों का ही पैसा उधर पे क्या होगा, सेव होगा, डिपॉजिट होगा, उनको ही क्रेडिट मिलेगा और उन्हीं के लिए क्या मिलते, सेविंग और डिपॉजिट, और पूरी प्रोसेस जो रहेगी वो पूरी एग्रीकल्चर से रिलेटेड रहेगी, इसको बोलेंगे एग्रीकल्चर बैंक। फॉरेन एक्सचेंज बैंक का वो बैंक होंगे जहाँ पे आप क्या बोलते, दूसरी कंट्री के मनी को एक्सचेंज कर सकते हो अपनी करेंसी में, या फिर आपको उनकी करेंसी चाहिए तो वो मिल जाती है। और पूरे अगर कोई आपका बिजनेस चल रहा है जहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज होता है, मतलब फॉरेन से आपके गुड्स इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होते हैं, तो उस बैंक का पूरा रिलेटेड पार्ट किसके पास रहेगा, फॉरेन एक्सचेंज बैंक के पास। सेंट्रल बैंक कौन से बैंक होंगे, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है, ये बैंक जो सेंट्रली
सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्न करेगी और उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, वो बैंक को हम क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट के बैंक को सेंट्रल बैंक। रीजनल रूरल बैंक क्या होंगे, जो छोटे छोटे गाँव में जो छोटे छोटे बैंक होते हैं और रूरल पीपल, उनको बोलेंगे रीजनल बैंक। इंडिजीनियस बैंक्स होते हैं कुछ कुछ, ये भी छोटे छोटे टाइप्स ऑफ इंडिजीनियस बैंक होते हैं। नेक्स्ट आता है एग्जिम बैंक्स। ये बैंक्स वो होते हैं जहाँ पे नॉर्मल एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट्स, जब आप कोई भी बिजनेस सर्विसेज में एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट कर रहे हो तो उस प्रोसेस में जो बैंक्स होते हैं उनको बोलते हैं एग्जिम बैंक। ये पूरे आपका एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट प्रोसेस का जो भी मनी आएगा, डिपॉजिट होगा, आप जो लोन उठाओगे, अगर कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हो जिसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट में हेल्प हो रही हो या फिर आपको उसके लिए लोन चाहिए है, तो वो बैंक सब आपको कौन देंगे, एग्जिम बैंक। नाबार्ड भी एक टाइप का रूरल बैंक होता है बट जहाँ पे नेशनल एग्रीकल्चर बोर्ड ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है ना, ये एक टाइप्स का बैंक होता है जहाँ पे आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड और रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड लोगों का क्या होता है, यहाँ पे बैंक इनकम सेव और मतलब मनी सेव और डिपॉजिट होता है, और जो पुअर पीपल रहते हैं और रूरल पीपल रहते हैं उनके लिए प्रॉपरली टाइमली मनी उनको एज अ लोन या फिर क्रेडिट प्रोवाइड होता है। दीज आर दी टाइप्स ऑफ बैंक्स, है ना। अब व्हाट आर दी इम्पोर्टेंस और एडवांटेजेस ऑफ बैंक, क्या एडवांटेजेस होंगे बैंक के, तो इट हेल्प्स इन सेविंग हैबिट। विद द हेल्प ऑफ बैंक अपन अपने मनी को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, और ये विद द हेल्प ऑफ दिस वी आर हैविंग अवर सेविंग हैबिट, प्रोटेक्शन ऑफ वैल्यूएबल एसेट। We should also protect our valuable asset like gold or any other valuable asset in the bank with the help of locker facility. Capital formation, by continuous saving we will also maintain various types of capital which is helping, and the money collected is known as capital formation. Transfer of fund, if we want to transfer someone our money, so we will also transfer our fund with the help of banks. Facility of travelers act, with the help of bank we will also do the facility of travelers act. Okay, thank you.